Hello friends, today we would like to think about fourth part of current electricity. Last three parts, Ohm's law, then you know that very well, current density, drift velocity, relationship between current density and drift velocity, then resistivity and relaxation time. In the last part, that means in last lecture, we discussed a very important point, mobility, and you know that after mobility, carbon resistor and color code method for carbon resistor. If you remember the methodology to find the resistance of carbon resistor, so you have to remember one color code table. And how can you easily think about this color code method? So B.B. Roy, Great Britain, very good wife be white, गोल्ड सिल्वर, देन नो कलर. तो वो अपन लोगों ने देखा था. तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर वाकई जोरदार. सो यू कैन सी टुडेस टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडबल नीट. बी ग्रुप स्टूडेंट्स बी अलर्ट अबाउट इट. सो आई रिटर्न हियर धूम, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में धूम मचाने वाला है. सो बी अलर्ट. सो विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the relationship between resistivity rho and temperature T. If you think about the case of drift velocity at that time, I gave a most important point. You know that very well, temperature increases, then resistivity increases for metal. But for semiconductor, temperature increases, resistivity decreases. So same story here. We would like to obtain relationship between resistivity and temperature. Don't worry about this equation, because this equation is already, we can say that we have to accept without any proof. So the resistivity at T temperature, rho T, it is called resistivity at temperature T, is given by equation rho naught upon 1 plus alpha T minus T naught. This is the most important formula, don't forget. What do you mean by rho T? It is called resistivity at T temperature. What do you mean by rho naught? It is called resistivity, or rho zero, you can see resistivity at reference temperature. Keep in mind, this rho naught is called resistivity at reference temperature. Resistivity at reference temperature, that means reference temperature 0 degrees Celsius, sometimes 27 degrees Celsius, sometimes 100 degrees Celsius temperature, don't worry. So this reference temperature is nothing but it is denoted by T naught. So here T is the given temperature, T naught is not, it is called simply the reference temperature. So 4 points already we have discussed. Number 1, rho T. It is called resistivity at T temperature or at a given temperature T. Rho naught, it is called resistivity at reference temperature T naught. Generally reference temperature 0 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, 100 degrees Celsius. And you know that very well now, T and T naught, that means the given temperature and reference temperature. So now only one point is remaining. It is, you can see that alpha, very IMP. So this alpha is called temperature coefficient of resistivity. It is most IMP point. The temperature coefficient of resistivity, its unit very important, degree Celsius inverse और Kelvin inverse. इसका यूनिट भी याद रखना, पूछ सकते हैं मोस्ट IMP. Temperature coefficient of resistivity depends upon types of material. So alpha plays very important role. We will discuss about this alpha. For different materials, the value of alpha also different. But this is the formula of, you can see that resistivity in terms of temperature, and this equation gives relationship between resistivity and temperature. Once again, rho T is equal to rho naught is into 1 plus alpha T minus T naught. What do you mean by rho T? Resistivity at given temperature T. Rho naught, resistivity at reference temperature T naught. Here T is the given temperature, T naught is called simply the reference temperature. Don't forget, reference temperature T naught, that means sometimes 0 degrees Celsius,
They provide information in the form of 27 degrees Celsius, 100 degrees Celsius. And what do you mean by alpha? So alpha is called temperature coefficient of resistivity. Its unit, very important, degree Celsius inverse or Kelvin inverse. The value of temperature coefficient of resistivity depends upon types of material. Okay, so this is the equation of, we can say that, resistivity in terms of temperature. The similar type of equation can also be represented for resistance. Don't forget, for resistance. So for resistance, how can you write? It is RT is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. Same, ditto. Instead of resistivity we have to write resistance. Don't worry, ये डिराइव भी किया जा सकता है, मगर अपने को इसमें झमेले में कुछ की जरूरत नहीं है. So what do you mean by RT? It is called resistance at T temperature. What do you mean by R naught? Resistance at reference temperature. Alpha, temperature coefficient of resistivity. T is the given temperature. T naught simply the reference temperature. That means 0, 27 or 100. Ditto. Instead of resistivity, here you have to use word resistance. So friends, these two equations are very IMP. Especially this one is very important point. इसके ऊपर से कुछ important और फॉर्मूले डिराइव करते हैं, और उसके बाद अपन लोग एक दो पॉइंट डिस्कस करके आज पूरा लेक्चर, इसकी एप्लीकेशन करीबन अपन लोग 5 से 8 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं. आज इसमें मास्टरी लेनी है. देखो अपन लोग जो कर रहे हैं, हर एक वीडियो लेक्चर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हियर, बेहतरीन, आई कैन से दैट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू नीट. तो एक टॉपिक को बराबर अच्छी तरह देखना है, और उसके बाद उसके रिलेटेड सभी कंसेप्चुअल पॉइंट अप्लाई करके जेडब्ल्यू नीट लेवल पे जाना है. तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरह देखना है प्लीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट सम मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल फॉर्मूले पर्टिकुलरली फॉर दिस टॉपिक. सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिराइव करते हैं फॉर्मूले. फॉर एग्जांपल हियर RT. सो नाउ समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट अल्फा. सो हाउ कैन यू फाइंड अल्फा? सो अल्फा फाइंड करना हो तो इसके ऊपर से सीधा बनाते हैं RT माइनस R नॉट इंटू T माइनस T नॉट. यू कैन सी इसके ऊपर से बन जाएगा ना, देखो RT R नॉट 1 प्लस R नॉट अल्फा T माइनस T नॉट. ये R नॉट इस साइड चला गया तो RT माइनस R नॉट, फिर R नॉट अल्फा को, सॉरी R नॉट और T माइनस T नॉट को धक्का मार दिया, सो R नॉट T माइनस T नॉट और अल्फा इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. मुझे ये इक्वेशन दिमाग में चाहिए, मोस्ट IMP. ये इक्वेशन होगा यानी काफी सारा काम हो गया. डोंट वरी, मोस्ट IMP पॉइंट. इसके ऊपर से थोड़ा और डिस्कशन करें तो अल्फा का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/R नॉट. RT माइनस R नॉट दैट मींस डेल्टा R, चेंज इन रेजिस्टेंस. T माइनस T नॉट दैट मींस डेल्टा T. If delta T tends to zero limit, that means delta T temperature difference is not very large, then alpha can also be obtained by using the same equation R naught, but instead of delta R by delta T, now we can write dr by dt. You can see जरा इधर चिकना के से सभी अलर्ट, संभाल के चलना फ्रेंड्स, क्योंकि कैपिटल टी, काफी स्टूडेंट्स को कैपिटल टी का पता नहीं होता है. कैपिटल टी में यानी पता होता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ब्लैंक, मगर ये सब कंफ्यूजिंग है. कैपिटल टी पीरियडिक टाइम हो जाता है, कभी कभार कुछ लोग टेम्परेचर की जगह इसको टाइम कंसीडर करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ज्यादातर टाइम रिलेटेड होता है. बट हियर टी रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर, दिस dr by dt it is called rate of change of resistance with time, sorry with temperature. देखो यही पॉइंट, the rate of change of resistance with temperature, that means the change in resistance per unit change in temperature. इधर रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होगा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है. मगर सबसे मार्वेलस है इक्वेशन, तो ये तीन इक्वेशंस यानी 1 2 3 इतना आपके दिमाग में हो, मतलब आप सिंपली मास्टर. मगर इसकी एप्लीकेशन थोड़ी, जिसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है. सो अपन लोग इसकी एप्लीकेशन देखें उससे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं. क्या यू नो दैट वेरी वेल, अल्फा
Recently we discussed this point alpha. It depends upon types of material. So we'll discuss three types of materials, and we would like to think about relationship between resistivity and temperature for these three types of materials. So number one, you can see first of all we would like to think about relationship between resistivity and temperature for metal or simply conductor. So for metallic material, don't forget alpha always positive. Most important, the value of temperature coefficient of resistivity for metallic material always positive. If you draw graph, this is the graph of resistivity versus temperature T. So this is the nature of graph, you can see that. And this is the low temperature, there is high temperature, and this is room temperature. So you can see at room temperature almost linear relationship. That means at room temperature resistivity is directly proportional to temperature, but at high and at low temperature there is no linear relationship, or I can say non-linear relationship between resistivity and temperature. Now once again, metal, for metal alpha always positive. This is the graph of resistivity versus temperature for metallic material. You can see at room temperature almost resistivity is in direct proportion of temperature. One more important point, check this point. Here you can see that at absolute zero temperature, what's the value of resistivity? Resistivity also becomes zero. So this is the most IMP characteristics for the material like metal. For metal at zero temperature resistivity also zero. Most IMP. Now we'll think about the next. ये सभी points important है. Number 2 for alloys. That means simply the mixture of, you know that very well, elements. So for alloys, especially I can use, we can say that nichrome. You can also consider manganese. These all are best example of alloys. And nichrome, manganese, this type of alloys are not, we can say that so much depend upon temperature. That means they are, we can say that less temperature dependence materials for alloys. यानी कि nichrome, मैंगनीज ये ऐसे मिक्सचर है एलिमेंट्स के कि उसका टेम्परेचर के साथ कोई ज़्यादा नाता नहीं है. टेम्परेचर में बड़े पैमाने पे चेंजेस होंगे तो ये नाइक्रोम और मैंगनीज है वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है. इधर आपने देखा कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशनशिप लीनियर टाइप है. इधर कुछ भी टेम्परेचर में छेड़खानी होगी तो मेटल का रेजिस्टेंस उसके मुताबिक चेंज होता है. मगर अलॉयज में एक बहुत ही खास पॉइंट, नाइक्रोम मैंगनीज जैसे अलॉय टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं है. सो इफ यू ड्रॉ ग्राफ, the graph of resistivity versus temperature, so this is the nature of graph, and you can see what is the most important feature for these two graphs. Here at zero temperature resistivity becomes zero, but here you can see resistivity not becomes equal to zero, obviously at zero temperature. So at absolute zero temperature resistivity of metal becomes zero, but at absolute zero temperature resistivity of alloys doesn't become equal to zero. And this fact is used to, we can say, they detect the type of material, whether the given material is a metal or simply the mixture, that means the alloys. तो ये कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके अपन लोग आराम से जिसे कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल और अलॉयज के बीच का डिफरेंस. सो मोस्ट टाइम भी अलॉयज का ये पॉइंट देखते हैं. नाइक्रोम है वो लेस डिपेंडेंट है मटेरियल, जिसे कह सकते हैं, या लेस टेम्परेचर डिपेंडेंस मटेरियल है. यानी मैंने अभी बोला टेम्परेचर में बड़े पैमाने पे चेंजेस होंगे. नाइक्रोम पे जो रेजिस्टिविटी है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है, उसमें जिसे कह सकते हैं ज़्यादा कोई छेड़खानी होती नहीं. इसीलिए ये वायर माउंट रेजिस्टर, रियोस्टेट टाइप रेजिस्टेंस बनाने में नाइक्रोम जैसे अलॉयज का यूज होता है. बहुत ही आईएमपी नाइक्रोम, ऐसे नाइक्रोम वायर का यूज करके अपन लोग जिसे कह सकते हैं हीटर पॉइंट्स में भी यूज किया जाता है. तो ये जोरदार पॉइंट है. टोस्टर, सैंडविच है, सब में जिसे कह सकते हैं नाइक्रोम का यूज होता है. एनीवे फ्रेंड्स, नाउ थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी कुछ नहीं है. थर्ड नंबर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. इट इज, यू नो दैट वेरी वेल, सेमीकंडक्टर. सो फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा ऑलवेज नेगेटिव. ये क्वेश्चन एक मार्क में पूछेंगे.
What is the value of alpha for semiconductor? Positive, 0, negative. Keep in mind negative. And because of negative, one point is clear. This is the nature of graph. That means resistivity is simply inversely proportional to temperature. ये भी बात हमने second part में discuss की थी. If you increase the temperature of any semiconductor, then number density increases, and because of increasing number density, resistivity decreases. याद करो, ना याद आए तो ये फॉर्मूला m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ. अब n की वैल्यू बढ़े तो रेजिस्टिविटी कम होती थी. सो मोस्ट टाइम की 3 ग्राफ्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. नंबर 1 मेटल, देन alloys, and then semiconductor. What is the value of alpha for metal? Positive, while value of alpha for semiconductor negative. Here at 0 temperature resistivity of metal becomes 0, while at 0 temperature resistivity of alloys doesn't become, we can say, 0. While in semiconductor temperature increases, resistivity decreases. So most IMP 3 points. Theoretically भी IMP पूछ सकते हैं, explain resistivity, draw graph of resistivity versus temperature and explain it. तो ये 3 ग्राफ्स और इसके 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. मगर मैंने बोला ये जो टॉपिक है इसके लिए मशहूर है और न्यूमेरिकली वेरी साउंड. तो अपन लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स, जस्ट एनालाइज इट. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट. अब यहाँ से लेकर लेक्चर के एंड तक अपन लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपली जिसे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल सेक्शन में रहेंगे. और प्लीज बी ग्रुप वाले वो या ए ग्रुप दोनों के लिए टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बोर्ड का न्यूमेरिकल भी बनने के पूरे चांस. तो अपन लोग फॉर्मूले है वो थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक बार लिख देते हैं. यू नो दैट अल्फा, what is the formula of alpha? RT minus R naught upon R naught T minus T naught. Or you know that this equation, resistance at T temperature is equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught. तो ये सब कुछ आपको पता ही है. इसमें अल्फा का मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, जरा देखते जाओ प्लीज. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे. सपोज एट टी टेम्परेचर लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर. ऐसा कोई वायर दिया, देखो इस वायर का टेम्परेचर जब कैपिटल टी हो तब उसका रेजिस्टेंस आर है. और कोई रेफरेंस टेम्परेचर दिया है. रेफरेंस टेम्परेचर अपन लोग जानते हैं टी नॉट. टी नॉट टेम्परेचर पे इस वायर का रेजिस्टेंस है आर नॉट. तो इसका कोफिशिएंट यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा फाइंड करो. तो अभी आपके सामने फॉर्मूला है. तो अपन लोग ये फॉर्मूला है इसमें जिसे कह सकते हैं, एक बार और लिखते हैं ताकि और आपको पता चले. अल्फा इज इक्वल टू, यू नो दैट आर टी माइनस आर नॉट T minus T naught. RT, that means resistance at T temperature, this is your RT given. R naught, resistance at reference temperature given. R naught given. T is the given temperature, no doubt with you. And T naught also given, reference temperature also given. So set up the values. So one can easily find the value of alpha in terms of degree Celsius or Kelvin inverse. Most IMP formula. And you can see this is the first application. क्या वापस देखो, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है और कोई रेफरेंस टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस है. 1 2 3 4 5, 5 में से 4 चीज है. 1 2 3 4. ऑब्वियसली अल्फा अपन लोग मिल सकता है. इसका शॉर्टकट हमारे पास है, सीधा लिख सकते हो. तो ये अपन लोगों ने डिस्कस किया आपका पहला अनसोल्ड 3.7 टेक्स्ट बुक अनसोल्ड एक्सरसाइज में से 3.7. Just analyze it.
अब अपन लोग इसके जैसा एक और क्वेश्चन 3.7 अनसोल्व 3.7 में डिस्कस रेडी। आज इसमें मास्टरी लेने की है, आपको पेन नोट रखनी साथ में, हो सके तो अपने आप भी ट्राई करना है। तो अब एक और न्यूमेरिकल अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा आपको एक वायर दिया है, दिस इज यू कैन सी दैट अ वायर रेडी। इसका जिसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जस्ट मिनट, हाँ सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। देखो आपको यूनिट से पर से तय करना है, इधर टेम्परेचर है इधर रेजिस्टेंस। सो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 100 ओम, दिस इज योर टी नॉट एंड दिस इज योर आर नॉट। पहला पॉइंट क्लियर। नाउ if resistance becomes 117 ohm, if resistance of this metallic wire becomes 117 ohm, then what is we can say that its temperature, this is your target. Here value of alpha also given, so value of alpha given 1.7 into 10 raised to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलो इसका टेम्परेचर फाइंड करना स्टार्ट। वापस न्यूमेरिकल, जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वायर का है तब रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो मतलब उल्टा सोचे 100 ओम रेजिस्टेंस है तब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 117 ओम हो तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, अल्फा आपके पास है। सो जस्ट यू नो दैट दिस फॉर्मूला, सो वंस अगेन विल अप्लाई। मगर इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखना हो तो अपन लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एज पर फॉर्मूला और इक्वेशन, सॉरी एज पर इक्वेशन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सो व्हाट इज द वी कैन से दैट फॉर्मूला फॉर अल्फा, ये हमने देखा है आर टी माइनस आर नॉट 1 सॉरी टी माइनस टी नॉट। व्हाट्स योर टारगेट टी, so obviously we can write t minus t naught rt minus r naught upon r naught alpha. Now you can see that what happened here, t minus t naught already in the form of subject. Now what is the meaning of t, your target temperature, so t is equal to t naught plus rt minus r naught into alpha. So temperature T is equal to, what is T naught, it is 27, so 27 plus RT resistance at T temperature. What is the resistance at T temperature, it is 117, so 117 minus R naught, it is 100 ohm upon R naught 100 multiply by alpha, it is 1.7 into 10 raised to minus 4. Simplify, you will get answer 1027 approximately। इधर ये 27 और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 1000, सो 1027 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। यू कैन सी दिस इज योर टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है वो 117 होगा। जरा आप दिमाग लड़ाओ, थोड़ा डिस्कशन इसमें करते, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, ओनली यू कैन सी हियर 100 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस, you can see that at 27 degree Celsius temperature, what is the resistance, 100 ohm. Now we would like to improvise the resistance from 100 ohm to 117 ohm. Check करते जाना, then what should be the change in temperature, it is 1027 degree Celsius, that means approximately 1000 degree Celsius temperature we have to improvise, then and then its resistance become 117 ohm. मतलब जबरदस्त। ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, मार्क्स के लिए तो ओके, इंजीनियरिंग में इसकी बहुत वैल्यू है। थर्मिस्टर, थर्मोस्टेट, ये सब जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं। और खास करके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये टेम्परेचर कंट्रोल रिलेटेड ट्रांसड्यूसर ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं। इसका प्रोग्रामिंग जो करना हो सॉफ्टवेयर में, तब ये सब फॉर्मूले का यूज होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, don't forget, this is your unsolved number 3.5. We have discussed unsolved number 3.5. Just analyze in your textbook.
ready? Now we move towards the next. अब जो question है वो डैम शेयर 2021. So IMP and very important particularly for MCQ also. So be alert. Most IMP question. अब ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ ताकि आप दिमाग से सीधा अप्लाई कर सको. Okay. So this is I can write धूम question for board 2021 definitely. Now what happened here? There is a wire, you can see. This wire is connected with a battery of 230 volt. Numerical को देखना बराबर. Whenever this metallic wire or this wire is connected with 230 volt battery, then obviously current is passing through it. It is I1. This current is given, don't worry. I1 is given 3.2 ampere. Ready? 3.2 ampere current is passing through this wire. अगर within few seconds, what happen in fraction of second, current we can say that get steady state value. शुरुआत में current fast से जाता है तो value ज़्यादा होती है, but in steady state, what is the current passing through this same wire? बैटरी तो वही connected है, मगर अब इस वायर में से करंट 3.2 एम्पियर की जगह 2.8 एम्पियर करंट पास होता है. 2.8 एम्पियर you can see it. So within fraction of second current gain its steady state value. अब ये कंटिन्यूसली यही फ्लो होता है. शुरुआत में जूम से ऐसे ये पॉइंट आता है, you can see. तो ये जो स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन करे तब उसका टेम्परेचर कितना होगा? Initially whenever battery is connected and 3.2 ampere current passing through this wire, at that time temperature 27 degree Celsius. Don't worry, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस कंडक्टिंग वायर को 230 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते तब इस वायर में से 3.2 एम्पियर करंट पास होता है. मगर मैंने बोला विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन करता है, यानी कि पहले जूम से बढ़ता है, फिर एक एक्सपोनेंशियल बढ़ के फिर एक स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन करता है. तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है 2.8 एम्पियर. तब वो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा, तब हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है. इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फॉर दिस स्टेडी स्टेट करंट. तो अपन लोग पहले सबसे पहले ये टेम्परेचर सपोज T है वो कंसीडर कर ले. न्यूमेरिकल में दम है दोस्तों. देखो इक्वेशन एप्लीकेशन में इधर वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज है, करंट है. इधर रेफरेंस टेम्परेचर दे दिया 27, आपका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर T. सो विल कंसीडर लेट एट T capital T steady state temperature current becomes 2.8 ampere. So this is your target. Let a T steady state temperature current gain its steady state value 2.8 ampere. तो अपने को T फाइंड करना है. दिस इज योर टारगेट. तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए अपने पास फॉर्मूला है नो डाउट. अगर फॉर्मूला है उससे पहले रेजिस्टेंस चाहिए. रेजिस्टेंस एक भी नहीं है तो डोंट वरी. इधर देखो आपको रेजिस्टेंस के बदले वोल्टेज और करंट दे दिया, वोल्टेज और करंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R27. व्हाट डू यू मीन बाय R27? रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला ओम्स लॉ V by I. You can see that V by I. So V by I1, V 230 volt, I1 already 3.2. This is your answer. 82 point something. Don't worry. Now at T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 2.8 एम्पियर के लिए T लिया है, and resistance of wire it is RT. What do you mean by RT? Resistance at T temperature. So resistance at T temperature, what is the voltage? Directly I can write 230, and at that time what is the current? 2.8 ampere. So if you think about the values, then here just a minute, or you can also calculate yourself, don't worry. Okay, it is given 82 point, this value given 82.143. So
it is 82.143 and here 75 point something, 71.875, 71.875 ओम। चलो ये आपको कैलकुलेट भी कर सकते हो, डन करिए। और अब देखो वरना भी कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, करंट 3.2 में से बन रहा है 2.8, करंट डिक्रीजेस, obviously resistance increases, you can see resistance increases from 71 to 82, तो resistance increases so obviously temperature increases। यानी एक बात तो फिक्स कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो करंट पास हो रहा है उस करंट को रिड्यूस करना है, या रिड्यूस हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि करंट रिड्यूस होता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब अपने पास R27 है, यानी रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर ऑलरेडी विथ अस। और अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ we'll apply the concept of alpha. So what is the alpha is equal to RT minus R naught, R naught T minus T naught। इसमें से आपका टारगेट क्या है, टी फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया टी माइनस टी नॉट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सो आर टी माइनस आर नॉट इनटू अल्फा। सो अल्टीमेटली टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस आर टी माइनस आर नॉट अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन फॉर फाइनल टेम्परेचर और टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट, or we can say the steady state situation। T naught, what is the value of T naught? T naught already with us। T naught का मतलब है रेफरेंस टेम्परेचर, मायने देखो रेफरेंस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, so it is already with us 27 डिग्री सेल्सियस। RT resistance at T temperature, it is already 82.143 ohm। R naught resistance at reference temperature 27, it is 71.87, so RT with you, R naught with you, so R naught with you, and alpha also given, it is 1.7 into 10 raised to minus 4, here value of alpha 1.7 10 raised to minus 4 degrees Celsius inverse। So all values with you, set up the values, and if you simplify you will get answer 867। so here T is equal to 867 something degree Celsius, so you can see it degree Celsius। so this is your, we can say that answer 867 something, here 3, okay, no doubt। so this is your numerical most IMP। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें करंट का स्टेडी स्टेट सिचुएशन देंगे। वंस अगेन पहले 3.2 एम्पियर करंट पास हो रहा था, तब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस देख लो। अब करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन करता है, मतलब थोड़ा सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट एक स्टेडी स्टेट वैल्यू ले लेता है और कांस्टेंट फ्लो होता है, वो वैल्यू है 2.8 एम्पियर। जब इस वायर में से, ये दोनों डिफरेंट वायर नहीं है, सेम वायर, यू नो दैट सेम वायर है, दो अलग अलग सिनेरियो है। सो यही वायर में से 3.2 एम्पियर की वजह अपन लोग क्या समझे कि 2.8 एम्पियर करंट पास होगा, तब उसका टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि जैसे ही करंट पास होगा तो अपन लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करते हैं, और इधर अपन लोग जानते हैं कि करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कितना, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, देखो वहां से सीधा टेम्परेचर बन गया 867, करीबन 840 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बढ़ोतरी करो, तब जाके करंट है वो स्टेडी स्टेट लेवल लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज दिस इज योर अनसोल्ड नंबर 3.8 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, वेरी वेरी आईएमपी 2021 के लिए मोस्ट आईएमपी। अब इसके जैसा एक डिट्टो न्यूमेरिकल दूं, उससे पहले एक बार देख लो ताकि दूसरा क्वेश्चन करने में आपको पता चले। Ready? So now we'll solve one more, and you have to solve yourself now। Okay, अब अपने आप ट्राई करनी वापस।
तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी बिल्कुल इसके ऊपर चलने वाला क्वेश्चन, सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. So what is the condition? You can see. First of all, there is a wire. You can see this is this type of wire is shown in this diagram, and 230 volt battery is connected with this wire. Okay, then obviously there is some current passing through it. Don't forget, here the value of current is not given, but whenever 230 volt battery is connected initially, then its resistance given, it is 75.5 ohm. Okay, 75.5 ohm. Ready? What is the resistance? 75.5 ohm, and temperature also given. It is, we can say that at 27 degrees Celsius, this entire condition is situated or described at this temperature 27 डिग्री सेल्सियस. अपन लोग तो जानते हैं जैसे ही करंट है वो थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैटरी के साथ ऐसा वायर कनेक्ट करे तो करंट पहले पुस्टअप होता है, मगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन रहता है. दिस इज स्टेडी स्टेट. इन स्टेडी स्टेट कंडीशन दैट मींस सेम वायर, उसके साथ सेम बैटरी 230 वोल्ट, मगर अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू दी है 2.6 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू इट. 2.6 एम्पियर. So whenever current gain its steady state condition, then what is the temperature of this conducting or metallic wire? Think about it yourself. This all information with you. Okay, मैं एक और पॉइंट इधर लिख देता हूँ. Let T is the steady state temperature. Okay, at T steady state temperature current becomes 2.6 एम्पियर. चलो ये कंडीशन मैंने अजम्पशन की तो लिख दी. वापस न्यूमेरिकल देखते हैं. सबसे पहले ऐसा कोई वायर है, उसके साथ 230 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, तब उसका रेजिस्टेंस 75.5 ओम है. करंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात है. अब जैसे ही करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू 2.6 एम्पियर कंसीडर करता है, तब ये कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना है योरसेल्फ. Okay, so now you think about it. You can see here this numerical is little bit easy as compared to last one. In the last one, current value is given. Here already in the first case resistance is given. So this is your resistance at 27 degrees Celsius. So this is your R naught. That means the resistance at reference temperature. And this 27 degrees Celsius, this is your T naught. That means the temperature, reference temperature. Here I 2.6 T. So T steady state temperature, then current becomes 2.6 ampere. So what is the resistance? Resistance at T temperature. Let resistance at T temperature, it is RT. So what is the resistance? Resistance, that means voltage upon current. So 230 divided by 2.6. Then here answer already with us 85.8 ohm. You can see. So this is the resistance at T temperature. तो अपने पास RT भी आ गया. अल्फा ऑलरेडी गिवन, डोंट वरी, 1.7 into 10 raised to -4. अगर मैं डेटा देने में मिस कर गया तो सॉरी फॉर दैट, बट वी कैन कंसीडर अल्फा हियर. नाउ व्हाट्स योर टारगेट? T. तो वापस यही कहानी, RT minus R naught upon R naught into T minus T naught. So it implies that T minus T naught is equal to RT minus R naught upon R naught into alpha. So T is equal to T naught plus RT minus R naught into alpha. You can see this is your final temperature related point. T naught, what is the value of T naught? It is 27 plus RT already we have found 85.8 minus R naught already given, readily available 75.5 R naught into
1.7 into 10 raised to minus 4. Simplify, you will get answer. What's your answer here? Your answer 847 degrees Celsius. 847 डिग्री सेल्सियस, दैट्स योर आंसर. और ये भी एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है. दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बट इलास्ट्रेशन नंबर 3.3 मोस्ट आईएमपी. देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक रिलेटेड है, वो सब उठा लिए हमने. 3.3 और कोई इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जो बेहतरीन है और मैं सॉल्व नहीं करूँगा होमवर्क में, मगर मैं उसके जैसा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहता हूँ. तो टोटल 5 क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रिलेटेड है. 3.7 अनसोल्व बोल रहा हूँ. 3.7, 3.5, 3.8. उसके बाद इलास्ट्रेशंस 2 है. 3.3 वी हैव डिस्कस्ड and 3.4 you have to do at your home, that means homework का. मगर 3.4 को थोड़ा टिपिकल इसलिए उसको समझना हो तो मैं एक क्वेश्चन अब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि अब अपन लोग कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल में जाते हैं तो आपको और पता चले. सो ये थीम, इतने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के बाद अब अपने आप अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट. ओके, आज अपन लोग यही पोर्शन पे रहने वाले हैं, एक भी दूसरा नया पॉइंट नहीं. सो इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट. तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. इट इज ऑलरेडी आस्किंग EEE 2007, यानी JEE से पहले EEE. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर resistance 6 ohm. At 50 degree Celsius temperature resistance 5 ohm. So what is the resistance at 0 degree Celsius temperature? This is your target. Here alpha is not given, don't forget. At 100 degree Celsius resistance of wire 6 ohm. At 50 degree Celsius it is 5 ohm. Then 0 degree Celsius, then what's the question answer? Think about it. तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया. EEE 2007, दैट मीन्स योर इलास्ट्रेशन नंबर 3.4. देखो मैंने इसलिए बोला एनसीईआरटी रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है उसको फंडामेंटली पढ़ दो. आप देखना काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिट्टो पढ़ते हैं, थोड़ा इधर उधर डेटा चेंज होके मोस्ट आईएमपी. तो अब इसको सोल्व करना कैसे? तो सबसे पहले ये अपना जिसे कह सकते हैं कि वायर है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसको अपन लोग रेफरेंस टेम्परेचर ले. सो लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R0. अब ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करना है, ये पहला जो रेफरेंस है उसके साथ ए कंसीडर रेफरेंस अप्लाई करना है. देखो मैं टर्न बाय टर्न. फॉर 100 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 6 ओम. सो फॉर 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द रेजिस्टेंस? ऑलरेडी वी हैव कंसीडरेड R0. तो अपने को जिसे कह सकते हैं कि ये कंडीशन बनेगी. तो ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, ये बनेगा रेजिस्टेंस एट, सॉरी दिस इज योर टी टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर. तो देखो ये अपन लोग अप्लाई फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहला केस, ये पहला रेफरेंस है वो जो कंसिडर्ड पोर्शन के साथ लेना, फिर दूसरा रेफरेंस वापस. तो अपन लोग अल्फा का अप्लाई करें. क्यों अल्फा? क्योंकि अपने पास आर टी, टी, आर नॉट, टी नॉट चार वैल्यू है. सो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट. So what is the value of RT? RT already with us 6 ohm. Temperature T पे resistance 6 ohm. तब टेम्परेचर कितना है? 100. वो बाद में पहले R नॉट, we have no idea about R नॉट, ये तो हमारे पास unknown है. Now R नॉट, that means R नॉट, T already 100 minus 0, क्योंकि रेफरेंस टेम्परेचर 0 है. So alpha is equal to 6 minus R नॉट, 100 R नॉट. This is your equation number 1.
वायर वही का वही है, मगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तब रेजिस्टेंस कितना था 5। तो अब दूसरा रेफरेंस लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेजिस्टेंस 5। तो अब इसके ऊपर रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं 0। सो फॉर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड आर नॉट। सो वंस अगेन वी विल अप्लाई द सेम कांसेप्ट अल्फा। इधर ध्यान रखना खास, अल्फा अपन लोग बिंदास ले सकते हैं सेम, कुछ लोग अल्फा 1 अल्फा 2 केस 1 केस 2 नहीं, यही वायर है, वायर रिमेन सेम इन बोथ केसेस। So wire remains same, so material remains same, so there is no change in value of alpha. So alpha is equal to again RT minus R naught, R naught T minus T naught. RT already with us, it is 5, 5 minus R naught, what is the, we can say that T, it is 50, here T और reference temperature तो 0, तो alpha का final answer होगा 5 minus R naught and denominator check करो, so 50 R naught. This is your equation number 2. So we can easily compare 1 and 2. So from equation 1 and 2, if you compare this both, so 6 minus R naught upon 100 R naught is equal to 5 minus R naught upon 50 R naught. So R naught cancel, 50 to the 100, so 6 minus R naught, these two multiply, so 10 minus 2 R naught. So you can see just exchange, so 2 R naught minus R naught, 10 minus 6 4 ohm, and this is your answer. अब ऐसे पॉइंट में डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, रेगुलर देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम, 50 का डबल हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, तब रेजिस्टेंस है 1 यूनिट बढ़ा 6 ओम, तो 50 का डबल सो 100, तब रेजिस्टेंस 1 यूनिट बढ़ा, तो 50 का उतना ही कम करें, 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 1 ओम बढ़ा, तो 50 डिग्री सेल्सियस में से 0 करें, यानी 50 डिग्री में से 0 डिग्री यानी 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करें, तो 1 ओम रेजिस्टर यहाँ पे कम होगा, तो 5 का क्या हो जाएगा 4। सो डायरेक्ट, मगर हर बार ऐसे कंसेप्ट नहीं अप्लाई होते, तो ये इलस्ट्रेशन 3.4 में आपको पता चलेगा। सो ऐसे क्वेश्चन में पहला दूसरा और फिर जिसे कह सकते हैं कि आप इस तरह का पॉइंट ले सकते हो। इसका दूसरा मेथड भी है, पहले इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनाओ, फिर इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनाओ, दोनों को कंपेयर करो और उसके ऊपर से जिसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट, तो यू कैन डू एनीथिंग, डोंट वरी, बिकॉज अल्टीमेटली लॉजिक इज इंपॉर्टेंट टू वी कैन से दैट गेट राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ट्रिपल 2007। मोस्ट टाइम भी पहले रेफरेंस को कंसीडरेड पॉइंट के साथ लो, फिर दूसरे रेफरेंस को कंसीडरेड पॉइंट के साथ लो और दो इक्वेशंस को कंपेयर करके आंसर। नाउ वी डिस्कस वन मोर, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट। तो अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो पीएमटी में पूछा है, मगर पहले इंडिविजुअल जब एंट्रेंस होती थी तो दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है डीपीएमटी। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। देयर इज अ वायर, ये अपने आप सॉल्व करना है, चलो। देयर इज अ वायर at 1000 degree Celsius temperature, resistance of wire becomes 4 times of its reference, resistance of wire becomes 4 times of its resistance at 0 degree Celsius temperature। वर्डिंग को पकड़ना बराबर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस वायर का रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाता है, 4 गुना, मगर किससे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है उससे 4 गुना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। दिस इज क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट। स्टार्ट। चलो ये तो अपने आप सॉल्व करना ही, हो सके उतना अप्लाई करो लॉजिक। अल्फा योर टारगेट, बहुत इजी।
ओके सो नाउ विल सॉल्व। अगर आपका आंसर इसमें आ जाता है तो अपने आपको शाबाशी देनी है, डोंट वरी। सो व्हाट हैपन हियर अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आर टी माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ये अपना रामा फेंकने का बिंदास, क्योंकि अल्फा चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय आर टी? आर टी दैट मीन्स रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसको अपन लोग कहते हैं आर टी। वो कितना दिया है? रेजिस्टेंस एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and resistance of wire 4 times, so is equal to 4 times of its resistance at 0 degree Celsius, that means reference temperature यानी T नॉट। so reference temperature पे resistance कितना होता है? it is R नॉट। so RT already 4 times of R नॉट। ऐसी कंडीशन दी है। वापस resistance of wire at T temperature simply 4 times of resistance at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius temperature, whatever the resistance, it is called reference temperature resistance R naught। तो RT की जगह रख देते हैं 4R naught, इधर भी R naught, so R naught। T अपने जानते हैं 1000, T naught है 0, इधर दिया जो है, डोंट वरी। so 4R naught minus R naught, so 3R naught upon R naught into 1000, that means 0.003 degree Celsius inverse। this is your alpha, you can see। तो आपको ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सो वन मोर, तो अपन लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। इसमें मास्टरी लेने की है, जस्ट चेक इट। ऐसा एक क्वेश्चन मैं देता हूं। Okay, at what temperature would be resistance of copper conductor be double its resistance at 0 degree Celsius? देखो वापस आया, at what temperature, इसके ऊपर से दिया at what temperature, मैं डेटा इधर लिख रहा हूँ, so just concentration required। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, just try it। so this is your question, at what temperature would be resistance of copper wire be double its resistance at 0 degree Celsius temperature। and here alpha for copper, that means coefficient of resistivity given 3.9 into 10 raised to minus 3 degree Celsius inverse। start। this is your question। once again, at what temperature resistance of copper wire, this is Cu copper wire, be doubled its resistance at 0 degree Celsius? think about it। चलो ये बहुत इजी है, राइट। ओके सो वी स्टार्ट अगेन विद दिस फॉर्मूला। अपने को जिसे कह सकते हैं फाइंड करना है इस बार कौन सा? हॉट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर T फाइंड करना है। at what temperature resistance of copper wire be doubled its resistance at 0? first of all, resistance at 0 degree Celsius, that means reference temperature resistance R naught, and here reference temperature T naught also given 0 degree Celsius, and resistance at T temperature resistance of copper wire be double, यानी resistance at T temperature becomes double, then you can see that resistance at 0 degree Celsius, that means R naught। अगला जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें था 4 टाइम्स, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि
फॉर्मूला अप्लाई करें, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। हर बार फॉर्मूला है वो लिखो, एक ना एक फॉर्मूला में नहीं, ताकि प्रैक्टिस बनती रहे, दिमाग में छपता रहे। अब अपन लोग का टारगेट टी है, बिकॉज ए टी टेम्परेचर, तो सबसे पहले टी माइनस टी नॉट आर टी माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट, सो टी इज इक्वल टू टी जीरो प्लस आर टी माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट। टी योर टारगेट, नो प्रॉब्लम। What do you mean by T not a reference temperature? It is already 0. So 0 plus RT, resistance at T temperature, it is 2 times of R naught. So 2 R naught minus R naught upon R naught into alpha. So obviously T is equal to 2 R naught minus R naught. So R naught cancels. So T is equal to 1 upon alpha. So 1 upon 3.9 into 10 raised to minus 3. इसको simplify करो, approximately 256.4 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट। ऐसे क्वेश्चंस नीट जेडब्ल्यू के लिए परफेक्ट आइडियल। काफ़ी स्टूडेंट्स है उसको एक लेवल बहुत ही हाई फाई या बहुत ही लो, ऑलवेज कुछ स्टूडेंट्स का आज ही मुझे जिसे कह सकते कुछ पॉइंट ऐसा था कि किस तरह प्रिपरेशन, सो लोअर में ऑलवेज मानता हूँ कि लॉजिक क्लियरेंस ऑलवेज फ्रॉम लोअर टू हायर। काफ़ी जगह पे बहुत ही हायर कंसेप्चुअल डिस्कशन होने के कारण स्टूडेंट है वो 5-10% होते हैं जो नेचुरल दिमाग लेके, 85 to 90% है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं हमें कुछ आता ही नहीं। एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। तो ये आप ही सोल्व कर रहे हो, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अभी सोल्व कर रहे हैं, डोंट वरी। अब फ्रेंड्स इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब अपन लोग एक बेहतरीन क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। सो इस पूरे लेक्चर का अपन लोग कह सकते किंग है, तो अपने आप ट्राई करनी है और फिर अपन लोग सोल्व करेंगे। सो दिस इज, यू कैन सी दैट वन ऑफ द मोस्ट टाइमली क्वेश्चन नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस। प्रैक्टिस आज हमने इसकी जबरदस्त की, अब ये सभी कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो जब तक क्वेश्चन का डेटा लेते हैं तब तक हर एक बंदा है वो रेडी हो जाए। ओके, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, डोंट वरी। टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं इधर डेटा बताता जा रहा हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर टू मटेरियल्स ए एंड बी। दिस इज मटेरियल ए, इसको बी कर देते और इधर ड्रॉ करते मटेरियल ए। सो टू मटेरियल्स ए एंड बी 0.01, इसका अल्फा दे दिया है 0.0031 डिग्री सेल्सियस और इसका अल्फा दिया है 0.0068 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। रेडी? ओके, नाउ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 मेड फ्रॉम मटेरियल्स ए एंड बी। अब ये दोनों मटेरियल्स ए और बी में से रेजिस्टर बनाए जाते हैं। इसमें से रेजिस्टेंस बनाया जाता है R1, इसमें से रेजिस्टेंस बनाया जाता है R2। Ready? Two resistors R1 and R2 made from this materials and B have resistance of 200 ohm and 100 ohm at 0 degree Celsius. ये जो रेजिस्टर बना, मैं ये वायर का रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो इसको अपन लोग कहते हैं RA, और ये B मटेरियल में से जो रेजिस्टेंस बना उसको कह देते हैं RB। बट व्हाट इज द, वी कैन से दैट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस resistance of wire A it is 200 ohm and resistance of wire B it is 100 ohm। अब आपको पता चला 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको अपने आप ट्राई करना है। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन, you have to draw diagram, so on a diagram the color code of a carbon resistor that would have a resistance equal to the series combination of R1 and R2 at temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। क्या पता चला? ओके, देखो पहले मटेरियल ए में से एक रेजिस्टर बनाया RA, दूसरा मटेरियल बी में से कार्बन रेजिस्टर या रेजिस्टर बनाया RB। ये रेजिस्टर ए है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है 200 ओम, रेजिस्टर बी का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 100 ओम, बी का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 100 ओम, यानी ये आपके रेफरेंस टेम्परेचर आ गए।
अब आपको ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है, यानी कि इस तरह रेडी, ये दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्शन किया जाए तब उसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और मैंने एक और पॉइंट बताया 0 डिग्री के बाद 100 डिग्री। So on a diagram the color code of a carbon resistor that would have a resistance equal to the series combination of R1 and R2। ये दोनों रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन है दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों का कंबाइन जो इफेक्ट मिले, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो नेट रेजिस्टेंस मिले, नेट रेजिस्टेंस अपन लोग कह देते हैं RS, तो वो तो आपको पता चल ही गया, इट इज RA प्लस RB, ये दोनों को सीरीज में डायरेक्ट। तो ये नेट रेजिस्टेंस को कार्बन रजिस्टर पे ड्रॉ करना है, नेट रजिस्टर है उसके ऊपर से कार्बन रजिस्टर का कलर कोड डिटेक्ट करना है। इन शॉर्ट में पूरा न्यूमेरिकल वापस समझाता हूँ। देयर आर टू मटेरियल्स A एंड B। ए मटेरियल का कोफिशिएंट दिया है अल्फा, बी का भी अल्फा दिया है। दोनों मटेरियल में से जो रेजिस्टेंस बना है, या रेजिस्टेंस को बोले और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों मटेरियल का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 200 ओम और 100 ओम। ये है आपका ए का R0 और ये बी का R0। फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सीरीज में हो तब उसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो और नेट रजिस्टर को कलर कोड मेथड पे डायग्राम, कार्बन रजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ करो। चलो ट्राई करो, जितना समझ में आए उतना ट्राई करो, बाद में अपन लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट। ऐसे न्यूमेरिकल में देखो, ए वायर का अल्फा दिया है, दिस इज अल्फा ए, बी वायर का अल्फा दिया है अल्फा बी, वायर ए का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया 200 ओम, दिस इज रेफरेंस टेम्परेचर। तो अपन लोग रेफरेंस टेम्परेचर है वो रिप्रेजेंट करते आर नोट है। व्हाट डू यू मीन बाय आर नोट है, या फिर आर ए नोट। आर ए नोट का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए एक 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। चलो, तो ये दोनों रेफरेंस मिल गए, मगर अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, मगर उससे पहले हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर फाइंड करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को देखो क्या करना है, सबसे पहले दोनों वायर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड कर लेने का। तो स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेट द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, it is RT, but we write here A for wire A। so RT A का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपन लोग इधर RAT कर देते हैं, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर A at T टेम्परेचर। so RAT is equal to R naught A 1 plus अल्फा A T minus T naught, ये जनरल फॉर्मूला फेंका। चलो RAT वो हमें फाइंड करना है। what do you mean by RAT, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A at T टेम्परेचर यानी 100 डिग्री। ओके, सो इधर आप 100 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आर नॉट ए, व्हाट डू यू मीन बाय आर नॉट ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सॉरी आर ए नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए एट रेफरेंस टेम्परेचर। व्हाट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, 0, एंड व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, 200। सो 200 1 प्लस अल्फा ए 0.0031 माइनस, सॉरी ब्रैकेट, T already 100 and T naught already 0, T यानी 100, T naught 0। so if you simplify, then what is the resistance of wire A at 100 degree Celsius, it is 31, इधर आ जाएगा और प्लस 1 करेंगे 32, इसका जिसे कह सकते हैं कि आंसर आएगा 260 ओम, सॉरी 268 ओम। रेडी, चेक कर लो आप। तो 31 इधर से जिसे कह सकते हैं 2 पॉइंट्स हट जाएंगे, उसके बाद की कहानी हम देखो, प्लस 1 करना है देन मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, तो मैं जरा कैलसी में देख लेता हूँ कितना पॉइंट 2 पॉइंट होता है। सॉरी, इधर जिसे कह सकते हैं कि 31 2 जा 62, दैट मीन्स इधर 62 आएगा, सॉरी
262 ओम। और अब ये आपका मिल गया 100 ओम पे रेजिस्टेंस। सेम स्टोरी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये आर बी टी इज इक्वल टू आर बी नॉट 1 प्लस अल्फा बी टी माइनस टी नॉट। अब आपको पता चल गया आर बी टी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी एट टी टेम्परेचर यानी 100 डिग्री है, वो अपने को फाइंड करना है। आर बी नॉट ऑलरेडी अपने पास है 100, ये दिया हुआ है। 1 प्लस अल्फा बी 0.068 टी है 100, टी नॉट 0। अब इसको सोल्व करो तो 68 प्लस 31 32 या 62, इधर जिसे कह सकते हैं कि 200 प्लस 31 262 100 प्लस 68 यानी 168 ओम ये आ गया। मगर ये दोनों रजिस्टर को क्या करना है, ये देखो ये है आपका आर ए टी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टर, और ये है आर बी टी यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बी का रजिस्टेंस। सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? इट इज आर ए टी प्लस आर बी टी। आर ए टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज 262 प्लस आर बी टी 168 यानी कि टोटल 400 ओम। सॉरी 400 नहीं, देयर इज अ मिस्टेक, 820 662 3 हो जाएगा 0। सो 430 आंसर आएगा 262 प्लस 168 यानी 430 ओम। अब इसको अपने को ये न्यूमेरिकल यहाँ पूरा नहीं होता है, इसको कलर कोड मेथड पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो 430 को स्प्लिट करते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। अब लास्ट लेक्चर है, देखो मैंने न्यूमेरिकल सिलेक्ट करने का रीजन यही है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विद कलर कोड मेथड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। सो 430 ओम को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं 430 to 10⁻⁴ you can see this is your 430 into 10⁻⁴ यानी 430 ओम। इधर टॉलरेंस निगलेक्ट करने का बोला। चलो बीबी रॉय याद करो, कल का पॉइंट बीबी रॉय कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो सबसे पहले 4 तो 0 1 2 3 4 यानी येलो, यू कैन सी दैट येलो कलर आएगा यानी पहला कलर होगा येलो। उसके बाद 3 यानी ऑरेंज, दूसरा कलर होगा रजिस्टर पे ऑरेंज। और 10⁻⁴ तो 10⁻⁴ मतलब ब्लैक ब्राउन, सो तीसरा कलर होगा ब्राउन। सो येलो ऑरेंज ब्राउन कलर का रजिस्टर होगा। ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है देखो मोस्ट टाइम पे, और इसमें जिसे कह सकते हैं कि कैल्सी का यूज नहीं है इतना, मतलब ये नीट के लिए भी बेहतरीन। सो अपन लोग फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्मेशन रहे। सो दिस इज यू कैन सी दैट एब्सोल्युटली राइट, येलो ऑरेंज एंड ब्राउन ये कलर कोड मिला। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन फ्रेंड्स वी डिस्कस देयर इज ओम। तो यू कैन सी दिस इज द मेथोडोलॉजी एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टर। तो आज हमने ये सब कुछ देखा, बेहतरीन पॉइंट्स। और ये लेक्चर टोटली टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड ही था। इतने क्वेश्चंस के डेटा को अच्छी तरह देखो, हर एक लेक्चर के बाद यही करना है, लॉजिक डेवलपमेंट का यही पॉइंट। पहले अच्छी तरह थ्योरेटिकल पोर्शन देखो, लेक्चर में जितने क्वेश्चंस उसके डेटा एक नोटबुक में लिखो, और हर एक डेटा को कंटिन्यूसली टर्न बाय टर्न सोल्व करो, अपना लॉजिक अप्लाई करके आंसर लाने की कोशिश करो। जहां भी अपना लॉजिक अप्लाई करने के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है तो चेक करो कि क्या गड़बड़ हो रही है। सो मोस्ट आईएमपी तो ये न्यूमेरिकल है, उसमें आप देखो कि क्या किया वापस 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है ए और बी का, हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना, मगर कब, दोनों को सीरीज में। तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन करना है जो हमने इधर किया, मगर एडिशन करने का कौन सा टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने टर्न बाय टर्न दोनों वायर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, और फिर एडिशन किया और उसके बाद उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, सो फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 3। अब ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में एंट्री लेने जा रहा है, क्योंकि अब वापस जिसे कह सकते हैं कि रजिस्टर, सीरीज, पैरेलल, ये सब कुछ मिक्सिंग कंडीशन आने वाली है। तो ये चैप्टर का मिडवे जोन में से अब अपन लोग बहुत ही जबरदस्त जोन में एंट्री लेने वाले हैं। तो ये सभी पॉइंट और पार्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। Be we can say ready for the next lecture and revise these all lectures continuously. Thanks.